हाँ साथियों, अ, मुझे खोपरा गड़े साहब के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, वो अपना स्पीच शुरू करें इसके पहले मैं उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूँ। खोपड़ा गड़े साहब बॉर्न ऑन 12th February 1952, belongs to village Sauri, Bidkar of Chandrapur district in Maharashtra. His parents were illiterate but strong Ambedkarites and Buddhist by ideology and practice. Thus, he carries the rich heritage of their active social activism. Academically, he is MSc Physics and LLB Gold Medalist in Administrative Law. He had been various administrative positions like CAO, ZP, Collector and Director, Social Welfare Department of Government of Maharashtra. He is well known in the public for his unique campaign of Samvidhan Ki Pehchan, Understanding Constitution. Through his Samvidhan Foundation, he initiated the celebration of 26th November as Constitution Day from 2005. In view of this program, the School Education Department in Maharashtra has issued instruction in 2007 for recitation of preamble in all the schools of Maharashtra and also printed preamble in school books. The government of Maharashtra has also decided to celebrate the 26th November as Samvidhan Divas with reading of preamble in schools, colleges and offices. In 2015, the Prime Minister made it national-wide program celebrate the 26th November at Samvidhan Divas. This goes to the credit of Mool Nivasi EZ Khopra Ghade Sahab. Mr. Khopla Ghade Sahab is well known for his special initiative and rigorous engagement with students and tribal people in Maharashtra. Apart from this administrative and social engagement, he has remained active in social journalism through numerous articles that he keeps on writing for social awakening and to promote social change. Hence, the CC of Bamse found him the most appropriate personality to address this gathering of 37th National Convention as a special guest. Particularly when we as an organization are also running BS4, भारत का संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रीय व्यापी महाजागरण अभियान जो BS4 का अभियान चला रहे हैं। आइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेगा अवेकनिंग नेशनल वाइड कैंपेन एडवांस टू रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट एंड प्रोमुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन वी देयरफॉर सर एक्सप्रेस आवर सिंसियर एंड heartfelt gratitude towards your acceptance of our invitation at the shortest notice and for your kind presence to grace in this historic occasion. We all welcome you, sir, with warm greetings of Jai Bhim, Jai Mool Nivasi, Jai Bharat, Jai Samvidhan. Thank you. बामसेप के 37th अधिवेशन में सम्मिलित सारे साथियों को मैं जय भीम कहना चाहता हूँ। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हें मैं अभिवादन करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्हें अभिवादन करता हूँ। और हमारे मित्र बीडी बोरकर साहब का शुरू से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आज के इस अधिवेशन के अध्यक्ष माननीय गंगाधर जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट बामसेप के हैं, उद्घाटक आदरणीय प्रोफेसर सोना झरिया मिंज, जिन्होंने अभी ऑनलाइन उनका भाषण हम लोगों ने सुना, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट माननीय कलीम अंसारी जी, जनरल सेक्रेटरी माननीय RS राम जी, इंगोली जी, एडवोकेट KS चौहान सर और
सारे साथियों, वैसे इस परिसर में आने का मेरा ये पहला मौका है, लेकिन जब मैं यहाँ नागपुर में डिप्टी कमिश्नर एडिशनल कलेक्टर था तब बीडी बोरकर साहब के बारे में कहो कि मैं जब फिजिक्स में एमएससी कर रहा था तब वो केमिस्ट्री में एमएससी कर रहे थे, हम दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे। एक मित्र जब सोशल मूवमेंट में कुछ कमिटमेंट के साथ आगे जाता है तो क्या क्या नहीं हो सकता, ये परिसर में आके मुझे देखने का अवसर मिला। मैंने ओएनजीसी मेरे एमएससी फिजिक्स के बाद मैं सर्विस में चला गया, ओएनजीसी में गया। ओएनजीसी छोड़ के फिर मैं स्टेट सिविल सर्विस, फिर ऑल इंडिया सर्विस में आया। तो बोरकर साहब ने मुझे फ़ोन किया था, एक बार मुझे मिले थे, बहुत पहले की बात है, कि हमें सरकारी ज़मीन नागपुर के आसपास में चाहिए, हमें इंस्टीट्यूट करना है, सामाजिक क्रांति का एक अभियान चलाना है। तो मैंने एक सलाह दी, मेरा जो अनुभव था प्रशासन का, कि सरकार की ज़मीन मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत समय उसमें बीत जाता है, बहुत लोगों के पास जाना पड़ता। तो मैंने उनसे कहा कि आपका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बामसेप का, आप सरकार की ज़मीन आपको कितनी मिल सकती है, उसके बजाय आप खरीदी कर लो, परचेस कर लो प्राइवेट लैंड। उन्होंने ये प्राइवेट लैंड खरीदी कर लिया और आप देख रहे कि एक 20-22 एकड़ ज़मीन यहाँ पर है, इतना अच्छा सुंदर परिसर है। और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो मैं बोरकर साहब का मैं सही में बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। आप सारे कैडर, आप मूवमेंट को जानने वाले लोग हैं, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये मेरा अभी परिचय कराया है और मेरा जो एक प्रशासकीय अनुभव रहा है, मैं 29 इयर्स प्रशासन में रहा हूँ। मेरी शुरुआत गढ़चिरौली ज़िले के नक्सली इलाके से हुई। जब मैं रिक्रूट हुआ तो मैंने आदिवासी के जो प्रॉब्लम्स है या आदिवासी का जो जीवन है और नक्सल की मूवमेंट और सरकार का काम काफ़ी करीब से मैंने उसको देखा। मैंने एक किताब भी लिखी मराठी में, आणखी एक पाऊल, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में। और जब मैं नागपुर जिला परिषद का सीओ बना 2005 में, तो मुझे ऐसे लगा कि जिस संविधान से देश चलता है, हम सारे लोग कहते हैं कि संविधान से देश चलता है, वो सही है, संविधान से देश चलता है। कैसे चलता है वो अलग बात है, वो बड़ा विषय है। लेकिन संविधान के ने जो ऑर्गन तैयार किए हैं, इस्टेब्लिश किए है, उसकी जो रिलेशनशिप है, उसकी जो अथॉरिटी है, जो आपस में है मेल जुल है, जो लोगों के लिए है, और जिसका उल्लेख जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का वो संविधान के प्रियम्बल में है। तो अगर वो संविधान से देश चलता है तो संविधान कितने लोगों को मालूम है? और सरकार चलाने वाले हैं जो या शासन प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को सही मायने में संविधान की धाराएं मालूम होना अलग बात है, कि संविधान की जो फिलॉसफी है, संविधान की जो वैल्यूज़ है, जो प्रिंसिपल है, कितने लोगों को मालूम है। तो एक हमारे अधिकारियों से जब मैंने ऐसी बात करी कि हमारा जिला परिषद का पंचायत समिति और जिला परिषद का एक्ट बना है महाराष्ट्र का, तो एक्ट कहाँ से आता है, इसका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है? तो क्लास 1 के ऑफिसर नहीं बता पाए कि इसका सोर्स क्या है। तो हमने एक्ट को बुलाया और हमने पूछा कि आप पढ़िए उसकी शुरुआत कहाँ से। तो फिर एक अफसर ने कहा कि ये आर्टिकल 3 से 9 लिखा। अभी चौहान साहब है, वो सुप्रीम कोर्ट में और मूवमेंट में काम करते, उनको सारी चीज़ें मालूम है। अगर आर्टिकल 3 से 9 से अगर हमारा कानून बनता है, आर्टिकल 3 से 10 है और 311 में भी हमारा अस्तित्व है प्रशासन में, तो जो चीज़ हमारे लिए, हम सभी लोग जो भी अधिकारी कर्मचारी है, सबके लिए लागू होता है।
तो फिर अगर ये बेसिक चीज़ें हमें मालूम नहीं तो क्या किया जाए। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि जैसे कि स्कूलों में राष्ट्रगीत पढ़ा जाता है, जैसा अभी हमने पढ़ा, वंदे मातरम भी पढ़ा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में और भी पढ़ा जाता है अलग अलग तरीके से, जो रूढ़ी परंपरा से चलते आ रहा वो भी पढ़ा जाता है। लेकिन संविधान की प्रास्ताविका, संविधान का प्रियम्बल नहीं पढ़ा जाता था। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम ये शुरू करें कि हम संविधान की प्रियम्बल स्कूल से पढ़ें। नागपुर उपराजधानी का ठिकान है, सेंट्रल प्लेस है, दीक्षा भूमि है, यहाँ संघ भूमि भी यहाँ है। तो हम संविधान, देश के संविधान को अगर हम स्कूल से पढ़ाएंगे तो बच्चों के माध्यम से, टीचरों के माध्यम से वो घर घर पहुंचने का एक अभियान शुरू हो सकता है। तो प्रशासन में ये होता है कि अगर कोई आप अच्छी चीज़ करने जाओ तो विरोध होता है, वो एक्सेप्ट नहीं होता है, जो मेरा आज तक का अनुभव रहा है। तो एक ने कहा कि सरकारी आदेश के बगैर हम कैसे शुरू कर सकते हैं। अब बहुत सारे सरकारी आदेश है, लेकिन फिर आदेश होते हुए भी हम नहीं करते। तो प्रियम्बल पढ़ने के लिए सरकार के आदेश की आवश्यकता है। हमने बोला देश का संविधान है और प्रियम्बल पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, हम स्कूल में पढ़ाएंगे, बिना पैसे का काम है, कोई उसमें स्कीम बनाने की ज़रूरत नहीं और कोई उसको फंड की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे वैसे भी पढ़ते रहते बहुत सारी चीज़ें, उसमें हम ये ऐड कर देंगे। तो एक ने कहा कि ठीक है, सरकारी आदेश नहीं, कम से कम जिला परिषद के भी रिजोल्यूशन की ज़रूरत होगी, आदेश की ज़रूरत है, उसके बगैर तो नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने आप में सोचा कि मैं संविधान से मुझे मौका मिला, बहुत लोगों को मिला, आप सबको मिला, वो सिर्फ SC ST OBC VJNT माइनॉरिटी इनको ही नहीं, तो ये देश के हर इंसान को मौका मिलता है, संविधान के बाहर किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो हमने कहा कि अगर देश का संविधान, अगर हमने प्रियम्बल को अगर बताना है तो उसमें सरकार के आदेश की क्या ज़रूरत है। तो मैंने अपने आप में सोचा कि चलो मुझे मौका है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मेरे पास अधिकार है, क्यों ना अधिकार का इस्तेमाल किया जाए। अगर मैं जिला परिषद में अगर ये प्रपोजल रखूँ, प्रस्ताव रखूँ, जनरल बॉडी में लोग उसको बोलेंगे ये क्या होता है, आप उसको हमें समझाइए, वो समझाने में टाइम जाएगा, फिर कोई कहेगा इसको सरकार को भेजिए, फिर सरकार को समझाने में टाइम जाएगा, बाय दैट टाइम हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, विषय वही ख़त्म हो जाएगा। हमने थोड़ी हिम्मत करी और हमने कहा कि सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पंचायत समिति में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन ऑफिसर होता है, उनकी एक मीटिंग बुलाई। मैंने वो प्रियम्बल की प्रिंट किताब से निकाली, उसकी झेरॉक्स करके उनके हाथ में थमा दिया और हमने कहा कि ये प्रियम्बल है संविधान की प्रास्ताविका, उद्देशिका, इसको मुख्याध्यापक को दीजिए, मुख्याध्यापक अपने स्कूल में उसको डिस्प्ले करेगा या उसको लिखेगा दीवार पे, और रोज़ प्रार्थना में जब खड़े होते हैं बच्चे उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने उसको 10 दिन का टाइम दिया। 10 दिन के बाद हम जब दौरा करेंगे, स्कूलों में आएंगे और जब हम बच्चे से पूछेंगे, टीचरों से पूछेंगे कि आपने क्या शुरू किया, और आपको तब हमें प्रियम्बल समझाना पड़ेगा। कोई लिखित आदेश नहीं। और 10 दिन के बाद जब मैं स्कूलों में जाने लगा तो दीवारों में लिखा, लिखने का जितना भी खर्चा आया होगा वही खर्चा है। और बच्चों से पूछते थे कि भाई तुमने स्कूल में नया क्या सीखना चालू किया, तो बच्चे कहते थे कि हम संविधान की प्रास्ताविका पढ़ते हैं। फिर ये क्या है संविधान, तो धीरे धीरे संविधान, तो उसके साथ में संविधान निर्माता बाबा साहब का नाम आने लगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट को चलाने वाली बात है, तो मूवमेंट इस तरह से भी चलाई जा सकती है। ये 2005 में हुआ और बाद में हमने लिखित आदेश निकाले कि इसको फिर चालू रखिए। महाराष्ट्र के सारे स्कूलों में बाद में शुरू हुआ। अब जैसे अभी मेरा परिचय देते वक्त कहाँ गया, तो
फिर अभी 2008 में संविधान दिन, जो भी हमने नागपुर में 2005 में किया था, वो अभी देश भर 2015 से संविधान दिन शुरू होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी प्रशासन के अधिकारी है, अगर वो संविधान से अगर उनको लगाव है, संविधान पे निष्ठा है, संविधान को सही माने में दिल से मानते हैं, तो संविधान की जो धाराएं हैं उसके साथ साथ संविधान की जो प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज़ है, उसको आत्मसात करके अगर काम करें तो बहुत सारा परिवर्तन हम समाज में ला सकते। आज हम देख रहे हैं कि 2015 से देश भर में संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता, बाबा साहब को याद किया जाता और संविधान की चर्चा होती है। ये छोटा सा काम जो 2005 में हमने अपने अधिकार में शुरू किया, अच्छे काम के लिए सरकार को पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है अभी प्रशासन में कि सरकार कहेगी तभी हम काम करेंगे, और मुझे लगता है कि इसीलिए प्रॉब्लम भी ज़्यादा खड़े हो गए। अगर आपको अधिकार दिया है तो आप इस्तेमाल करो अपना अधिकार। कभी आउट ऑफ बॉक्स काम करना पड़ेगा। संविधान का वाचन वैसे आउट ऑफ बॉक्स काम है, वो कोई मेरे सीओ के कर्तव्य का कोई या मेरे ड्यूटीज़ में नहीं आता। लेकिन अगर संविधान नहीं है तो फिर हमारा अस्तित्व क्या है? तो संविधान को पढ़ना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जब प्रियम्बल के बारे में कहते हैं कि व्हाट इज़ प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द सोशल फिलॉसफी, that is liberty, equality and fraternity as a way of life. Therefore, we must make our political democracy a social democracy. हम ये सारी जो बात करते हैं, और बाबा साहब ने प्रियम्बल को इतना महत्व दिया है, वो प्रियम्बल हमने पढ़ना चाहे। मैं गंगाधर जी आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कोई भी सभा सम्मेलन अगर है तो हम प्रियम्बल से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम जितने भी कार्यक्रम हमारे करते हैं तो प्रियम्बल से उसकी शुरुआत करते और राष्ट्र गीत के उसका समापन करते हैं कि हम प्रियम्बल पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो पहुंच जाएगा, उसका मतलब लोगों के पास जाएगा। तो प्रियम्बल ये संविधान है क्या? तो एक कवि ने कहा है, लिखा है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल समाधान हूँ। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल समाधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। तो ये भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि ये देश के हर इंसान को, हम तो समता स्वातंत्र्य बंधुता तो हम कहते आ रहे, उसी यही मूल्य को लेके हर इंसान के जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हो उसका समाधान कहाँ मिलेगा? तो ये देश के संविधान में मिलेगा। और इसलिए आपने जो संविधान का अभी फोर कहा है, वेरी गुड कैंपेन, इसकी बहुत ज़रूरत है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको चलाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब देश में, अब दिल्ली में कोई भी आंदोलन हो तो प्रियम्बल पढ़ा जाता है। कभी आपने देखा है इसके पहले कभी प्रियम्बल पढ़ा गया? नहीं कि पढ़ा। ये तो 26 नवंबर 1949 से तो उसको तो प्रियम्बल आया। प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा ही हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ। 26 जनवरी 1950 से हम प्रजासत्ताक हुए और पूरा संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान स्कूलों में लोगों तक ले जाने के लिए ऐसा प्रयास ना सरकार की तरफ से हुआ। संविधान की चर्चा होती है, नहीं होती है ऐसी बात नहीं, होना ही है, करना ही पड़ेगा। संविधान के बाहर हम कुछ नहीं करते। जो भी हमारी जीवन पद्धति है वो जीवन पद्धति हमारे संविधान में है। और इसीलिए उसको आगे ले जाने का जो बामसेप का जो आपका एक रिजोल्यूशन है, एक बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी जब आप कैडर को एड्रेस कर रहे थे गंगाधर जी की, आपके जो अवेकनिंग कैंप है, तो ये अवेकनिंग कैंप पे तो एक संविधान तो है ही है आपका, लेकिन दूसरा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के जो ब्रॉडली 3 चीज़ों से
ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक ढांचे के मैं एंगल से मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं कोई एक कैडर करके नहीं बोल रहा हूँ और मैं कोई इसका तज्ञ भी नहीं हूँ। आई एम नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। मैं भी औरों की तरह संविधान को पढ़ता हूँ, लेकिन एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वो अधिकार इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का जो संविधान ने दिया है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके पास अधिकार है अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर चेंज नहीं आ सकता। तो बदल लाना है तो हर आदमी अपनी अपनी जगह के जो भी अधिकार उसे प्राप्त है, जो भी संविधान और कानून के तहत प्राप्त है, उसने करना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमें 3 चीज़ें देता है। एक प्रोटेक्शन है, जैसे आपने बात अत्याचार की है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, दलितों पे हो, आदिवासी पे हो। दूसरी अफर्मेटिव एक्शन है, जो हम एक सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं तो देश के बहुत सारे जगह रिजर्वेशन का जो कानून है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विषय है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। चौहान सर उसमें काफ़ी उनकी दिलचस्पी है, उसको फाइट करते। और तीसरी जो बात है, जो भी मेरे ख्याल से थोड़ी निगलेक्ट है मूवमेंट में, कि वो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है कि सामाजिक आर्थिक जो बदल है, या जो दूसरे लोग हैं और जो पीछे रहे लोग हैं, उनमें जो गैप है, वो गैप को मिटाने की जो बात है, उसलिए वो एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेलफेयर की बात आती है। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी कमिश्नर था, तब हमने देखा था कि बहुत सारी स्कीम आती है वेलफेयर के लिए, लेकिन फंड नहीं है। तो ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बात है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एक सामाजिक न्याय प्रस्तापित करने की बात है, सामाजिक आर्थिक न्याय को प्रस्तापित करे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, बाबा साहब उसे भी कहते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इज ए नॉवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो नॉवेल फीचर है, तो उसको वो भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो मैं आपसे कुछ मैं हमेशा इसमें हम बात करते रहते हैं, हम सरकार से भी ये विषय को लेके लिखते हैं, बोलते हैं। तो आपको शायद मालूम होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत आर्टिकल 46 के तहत बेसिकली जो ये बजट आता है अनुसूचित जाति जमाती का, तो केंद्र शासन का जो हर साल का प्लान होता है, अर्थसंकल्प पेश करते, उसमें शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान आता है, और ट्राइबल के लिए ट्राइबल सब प्लान के नाम से एक प्लान बनाया जाता है। सो शेड्यूल कास्ट सब प्लान इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनुअल प्लान, एंड एनुअल प्लान इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द 5-year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। वो केंद्र का भी होता है, वो राज्य का भी होता है, वो यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों का भी होता है। अगर हम इसे देखें कि पिछले कुछ सालों में जो शेड्यूल का सब प्लान की अगर बात करें, तो पॉपुलेशन सेंसस, अब सेंसस की भी आपने बात करी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो सेंसस 2011 का हुआ, वो 2011 के सेंसस में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन देश में 16.6% है। तो 16.6% पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए आप जो विकास का प्लान बनाते हैं, तो उसमें अपने पॉपुलेशन परसेंटेज में बजट को देना चाहिए, ईयर मार्क करना चाहिए। ये केंद्र शासन का काम है, वो हर राज्य का भी काम है। आप हर राज्य से आप यहाँ आए हुए हैं तो उसे पढ़ना पड़ेगा, उसको वो थोड़ा समझने के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मोटा मोटी अगर हम उसको समझे कि हमें बहुत सारी स्कीम चलानी है तो उसको पैसे लगेंगे। पैसे आएंगे कहाँ से? बजट में आएंगे। तो बजट बनाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर तैयार करता है, वो अपनी विचारधारा को रखते हुए बजट बनाते हैं। फिर बजट बनाने के बाद जब पैसा वो स्कीम में आएगा तभी वो स्कीम चलेगी। अब जितना अभी यहाँ रेंगना बोड़ी में हमने इतना सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी उद्देश्य से हमने ये सब बनाया, लेकिन उसको चलाने के लिए पैसा लगता है। अगर नहीं पैसा रहेगा तो पड़ा रहेगा।
तो अगर हम देखें, मेरे पास उसके आंकड़े, हमारे PS कृष्णन नाम के, अभी चौहान साहब आप जानते होंगे उनको, उनका डेथ भी हुआ। ही इज ए वेरी सीनियर IAS ऑफिसर, PS कृष्णन। उन्होंने काफ़ी काम किया इस सब्जेक्ट पे। तो करीबन ये 6 साल में शेड्यूल कास्ट सब प्लान के भारत सरकार ने जो लोक संख्या के परसेंटेज में बजट में निधि देना चाहिए वो दिया नहीं। तो वो कितना है? करीबन 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ से ऊपर। और वही करीबन 2 लाख करोड़ शेड्यूल ट्राइब का है, ट्राइबल सब प्लान। ये दोनों के लिए लागू पड़ता है। और ये ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान की शुरुआत कब हुई? तो 1980 से उसकी शुरुआत हुई, 79-80 से। और 6वीं पंचवार्षिक योजना से हुई। और ये इसीलिए हुई कि अगर समाज के पिछड़े लोगों का, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जमाति का अगर हमें विकास करना है, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र में है, उसकी गरीबी निर्मूलन का हो, रोजगार का हो, अच्छा वातावरण, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की बात हो, बेसिक फैसिलिटी देने की बात हो, तो उसे पर्याप्त निधि देना चाहिए। दैट वाज द फिलॉसफी। जो शेड्यूल का सब प्लान, उसको स्पेशल कंपोनेंट प्लान भी कहा जाता है। अभी उन्होंने नीति आयोग ने उसका नाम बदल दिया है। तो बेसिक फिलॉसफी क्या है? तो इन लोगों के लिए, जैसे कि रिजर्वेशन में हम बात करते हैं, यही फार्मूला इधर भी, वो भी फिलॉसफी यहाँ भी लागू होती है। तो अगर 3 लाख करोड़ रुपए अगर भारत सरकार ने पिछले 6 साल में, उसके पहले भी है, 10वीं और 11वीं पंचवार्षिक योजना में भी अगर देखा जाए, जिस कांग्रेस सरकार ने, जैसे अभी किसी ने कहा था, जो भी लोग कांग्रेस और बीजेपी के साथ होते हैं तो हमारा कोई भला नहीं होता। लेकिन लोग हैं उनके साथ में, अपने अपने स्वार्थ के लिए है। अब मैं बोरकर साहब, हम आ रहे थे तो हम वही बात कर रहे कि लोग गुलामी छोड़ना ही नहीं चाहते। बाबा साहब ने स्वाभिमान बताया तो वो बोलने की बात हो गई, ऐसे समझ में आ रहा है आजकल। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कैडर के लोग हैं, जो कमिटेड लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो बेंड नहीं होते, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करते। तो जो शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान की जो बात है, मुझे लगता है कि बामसेप के जो अवेकनिंग कैंप है, या अपने अपने राज्यों में इसको RTI के माध्यम से मालूम किया जा सकता। महाराष्ट्र में भी ये जो हमने फिगर आपको बताई है, RTI से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या होना चाहिए। जैसे अभी स्कॉलरशिप का विषय आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अभी सरकार निर्णय कर रहे हैं कि 40% स्टेट ने 40% उसका एक्सपेंडिचर बेयर करना चाहिए, 60% भारत सरकार देगी। इसके पहले 100% भारत सरकार देती थी। अब 100% भारत सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देती थी। हम लोगों को भी स्कॉलरशिप का, बोरकर साहब आपको भी मिला होगा, हमें भी फ़ायदा मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप से, हम भी लोग पढ़े हैं। आने वाली पीढ़ी को भी स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। राज्य सरकारें कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पूरा केंद्र सरकार देना चाहिए। केंद्र सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं, पूरा एक्सपेंडिचर राज्य सरकारों ने लेना चाहिए, बियर करना चाहिए। ये झगड़े में बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, जो भी आरक्षण कक्ष में है, या तो जिन को भी स्कॉलरशिप मिलती है, उन्हें काफ़ी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। अभी 60-40 का फार्मूला मेरे ख्याल से अभी विचाराधीन है और तय होने वाला है। अब ये 60-40 का भी फार्मूला होने के बाद भी अगर सरकार अगर बजट में पैसा नहीं देगी तो बच्चों को टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एक भी ये बच्चा, गरीब का बच्चा, चाहे वो ट्राइबल एरिया का हो या किसी झोपड़पट्टी का हो या कहाँ भी रहने वाला हो, सरकार की योजना होते हुए भी अगर उसे टाइम में अगर उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर नहीं मिला, अगर वो वंचित हो गया तो वो अन्याय होता है। और इसीलिए न्याय के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बेसिक फिलॉसफी जो
शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान की है। मुझे लगता है कि ये मूवमेंट के माध्यम से हम लोगों तक लेके जा सकते हैं और करना बहुत ज़रूरी है। मैं रिटायरमेंट होने के बाद में जैसे कि हम ये संविधान का काम करते, मैंने 2 दिन का संविधान सम्मेलन करा था, भारतीय संविधान साहित्य सम्मेलन जागृति के लिए। ये नागपुर के दीक्षा भूमि में भी हमने और बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते। हर एक ने करना चाहे। हमने सरकार से ये कहा था, भारत सरकार से, कि संविधान को ये जो सब्जेक्ट है उसको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में उसको कंपलसरी करा जाए, अनिवार्य विषय के रूप में करा जाए। उस तरह से उसका सिलेबस बनाया जा सकता है। तो कंपलसरी होगा तो पढ़ेंगे, उसके एग्ज़ाम हो। अगर वो कंपलसरी नहीं, डिस्क्रिशनरी है, तो आज समाज में यही बात है कि संविधान तो बाबा साहब और बाबा साहब तो SC ST, संविधान हमारे लिए है ही नहीं। बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे जागृति हो रही, लेकिन आज भी संविधान के तरफ जो देखने का रवैया है लोगों का वो इसी तरह से है। क्योंकि जब मैंने नागपुर जिला परिषद से शुरू किया था तो बहुत सारे नेता यही कर रहे थे कि ये क्या है, संविधान पढ़ के क्या होने वाला है। अरे संविधान पढ़ के क्या होने वाला है? आज तो सारे लोग, मराठा आरक्षण भी संविधान की बात करता, मराठा लोग, सारे लोग संविधान की बात करते हैं। और सारे अपने आप को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है ये इस्टेब्लिश करने की, क्योंकि अगर वो इस्टेब्लिश नहीं करते तो फिर उनको संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) का कोई फ़ायदा मिल ही नहीं सकता। तो हर तबका अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश में है। और न्यायालय की तरफ से जो भी कानून स्टेट ने बनाया उसको अपने फेवर में लगाने की कोशिश करता है, आंदोलन कर रहा है। महाराष्ट्र में देखा कि मराठा का कितना बड़ा आंदोलन हो रहा। जितना मराठा का आंदोलन मराठा आरक्षण के लिए हो रहा, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए इतना आंदोलन कोई बोलने वाला नहीं दिखता। 2-4 कोई संगठन अगर कहे तो वो बात नहीं कर रहे। वो इसलिए मेरी आपसे, जो सारे लोग आए हैं अपने अपने राज्य से, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सरकार से, जिलाधिकारी से कह सकते हैं कि एक संविधान को आप प्रियम्बल को स्कूल में पढ़ाओ, रोज़ स्कूल में उसको पढ़ाओ। वो बिना पैसे का काम हो सकता है। जबकि संविधान जागृति का एक आदेश सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने 19 नवंबर 2015 को गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाला है भारत सरकार ने। और संविधान जागृति है, सिर्फ 26 नवंबर को एक दिन पढ़ने से जागृति नहीं होती। जैसे कि संविधान हमारे रोज़ की चीज़ है, वो हमारी जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। तो अगर हम उसे जनसभा तक ले जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण किया था, जब 2015 में उन्होंने किया, तब 2 दिन का एक सेशन बुलाया था, पार्लियामेंट में सेशन। और सेशन में उन्होंने ये कहा था कि हमने संविधान को लोकसभा से जनसभा तक ले जाना पड़ेगा। अब लोकसभा से जनसभा तक ले जाना, ये तो भाषण ही रह गया, आगे तो गया नहीं। लोकसभा तक वो 2 दिन तक सीमित रह गया। जनसभा तक ले जाना कि जब लोगों को कहेगा कि ये संविधान ने मुझे हक दिए है, ये संविधान ने मुझे मेरे विकास का कार्यक्रम दिया है, ये संविधान मुझे मेरे कुछ कर्तव्य भी बताता है। ये संविधान ने सारी चीज़ है, ये सरकार की मेहरबानी नहीं है। और सरकार और प्रशासन को अगर ये सवाल पूछा जाए कि यह संविधान ने मुझे यह सब कुछ देते हुए भी आप मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे, तो टू रेज द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिसेस, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार ये होता है कि हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़, जो जिस बड़ी आवाज़ होनी चाहिए, इकट्ठा आवाज़ होनी चाहिए, वो आवाज़ नहीं होती है। और शासन प्रशासन में को ऐसे लगता है कोई बोल ही नहीं रहा है। अब जब मैं भी कलेक्टर था वर्धा ज़िले में, ठीक है, हम कुछ लोग प्रोएक्टिव रोल में काम करने वाले हैं, लेकिन हर आदमी प्रोएक्टिव रोल लेके काम नहीं करता। आज का माहौल तो ये हो गया कि सारे लोग बच बच के काम करना चाहते हैं, अधिकार होते हुए भी काम नहीं करना चाहते। बाहर आके एक विचार मंच में बाबा साहब को कहना और अपने डे टू लाइफ में बाबा साहब के विचारों पे हिम्मत से और नीतिमत्ता से काम करना 2 अलग चीज़ें है। तो हमें ये लगता है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से मुझे अगर ये पोजीशन मिली है और अथॉरिटी मिली है, तो मैं नीतिमत्ता से, ईमानदारी से, लगन से
और हिम्मत से जो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ उसका न्याय के लिए मैं काम करूं। अगर इस तरह से अगर हर क्षेत्र में जो भी है अगर ये काम हुआ तो मुझे लगता है ये बदलाव हो सकता है कि जैसे छोटा सा काम 2005 में स्कूल में प्रियम्बल पढ़ने का हुआ और संविधान दिन हुआ, 15 साल के बाद क्यों न हो, 10 साल के बाद क्यों न हो, 2015 से देश भर में उसकी जागृति हो रही है। टाइम लगता है उसको, हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को उसको इंट्रोड्यूस करने में और उसको लोगों तक पहुंचाने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। संविधान को पढ़ना अपनी मूवमेंट को मजबूत बना सकता है। बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 के भाषण पे भी चिंतन होने की ज़रूरत है। अभी महाराष्ट्र में चौहान साहब आपकी जानकारी के लिए अभी जो सेशन हुआ महाराष्ट्र का, तो प्रियम्बल असेंबली में पढ़ा गया, सत्र में पढ़ा गया। हमने लोकसभा अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा के, मैंने खुद उनको 2 साल पहले चिट्ठी लिखी थी कि लोकसभा से अगर जनसभा में हमें संविधान लेके जाना है तो जैसे वंदे मातरम से शुरुआत होती है, लोकसभा का जो सेशन शुरू होता है वंदे मातरम से उसका आरंभ होता है। तो हमने कहा कि वंदे मातरम तो संविधान सभा ने उसको कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हो रहा है। लेकिन संविधान के प्रियम्बल को संविधान सभा की मान्यता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसकी काफ़ी बहस है, अब ये वक्त नहीं है ये चीज़ यहाँ बोलने का, लेकिन अगर प्रियम्बल संविधान का अगर उसको संविधान सभा ने मान्यता दी है तो उसको आप लोकसभा में, राज्यसभा में उसको पढ़ा जाए, उससे सत्र की शुरुआत की जाए। मुझे लगता है ये भी काम करना पड़ेगा कि अगर लोकसभा में पढ़ा जाएगा तो धीरे धीरे वो ग्राम सभा तक जा सकता। हम सब लोग मिलके हमारा जो एक सामाजिक उत्तरदायित्व है वो बाबा साहब के विचारों पे और संविधान के अधिकारों को साथ लेके हुए करने का हम प्रयास करेंगे। मैं आज फिर से बीडी बोरकर साहब का धन्यवाद इसलिए करूँगा कि एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे पार्टिसिपेट होने का मौका मिला, मुझे मेरी बात आपके सामने रखने का मौका मिला, जो चाहे संविधान की जागृति की हो या फिर विकास का शेड्यूल का सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान की बात हो, तो इस पे आप ज़रूर गौर करेंगे। अध्यक्ष गंगाधर जी आपका और सारे जो पदाधिकारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ और जय भीम के साथ मैं मेरी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।